Assalamu alaikum students. Let's take a theorem in this video that show that the orbit described by the planet around the sun is a conic and the planet will describe an ellipse, a parabola or hyperbola according as total energy per unit mass is negative, 0 or positive. We start with the proof that we consider the motion of the planet around the sun and the force is governed by the Newton's law of gravitation. So if the capital M and small m is the mass of sun and planet respectively, then they attract each other with the force capital M into mg over r square. Here g is the constant of gravitation. So now take the sun as a pole and the differential equation of the orbit is, we know that जो हमारी differential equation हम इससे पहले निकाल चुके हैं, which is d square u over d theta square plus u is equal to f over 8 square u squared. Now we can take here f is capital M into g over r square. So हम इक्वेशन नंबर 1 में इस f की वैल्यू पुट कर देते हैं. So this will become d square u over d theta square plus u is equal to capital M small m into g over r square divided by 8 square over u square. So इस 8 square over u square को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this will become 8 square u square d square u over d theta square plus u is equal to capital M into g over r square. Now here we can see that कि जो हमारे पास capital M into small m into g है, ये सब constant है हमारे पास. So we can write this as a mu. So we can write this as 8 square u square d square u over d theta square plus u is equal to mu over अब हमें ये देख लेते हैं कि u हम u लेते हैं, u is equal to 1 over r. So 1 over r square in this case is u square. So हम इसको लिख सकते हैं mu into u square. So ये u square हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि d square u over d theta square plus u is equal to mu over 8 square. So अब हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी है. इसको हम मज़ीद मैनिपुलेशन करते हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकें. सो हम इस u over 8 square की टर्म को दिस इज प्लस u माइनस mu over 8 square इज इक्वल टू 0. अब ना हम ये जो हमारे पास mu over 8 square है ये कांस्टेंट है. सो इस d square over d theta square को हम लिख सकते हैं u माइनस u over 8 square plus u minus mu over, so this is mu over 8 square is equal to 0. Because this mu over 8 square is constant, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो this will become 0. So इस d square u over d theta square को हम u minus mu over 8 square लिख सकते हैं. Now we can write this as d square plus 1 by taking this common u minus mu over 8 square is equal to 0. इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के लिए आती है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैन राइट दिस एज m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हम इसे कह सकते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. सो दिस u माइनस म्यू ओवर 8 स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसके जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास इस इक्वेशन का आता है, दिस इज a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा. दिस इज द जनरल सोल्यूशन. और इसमें a और b हमारे पास कांस्टेंट्स हैं जिनको हम इनिशियल वैल्यूज पुट करने के बाद दोबारा लिख सकते हैं. a हमारे पास इसकी वैल्यू आती है c इंटू काज ऑफ c इज अगेन कांस्टेंट, थीटा नॉट प्लस जो हमारे पास b है वो आ जाता है c साइन ऑफ थीटा नॉट. सो इसको हम लिख सकते हैं u माइनस u ओवर 8 स्क्वेयर को a और b की वैल्यू इसी को यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा c cos ऑफ थीटा नॉट cos थीटा प्लस c sin थीटा नॉट sin ऑफ थीटा. अगेन वी कैन राइट दिस u एज mu ओवर, दिस इज mu ओवर 8 स्क्वायर प्लस c. अब इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा नॉट cos थीटा प्लस sin थीटा नॉट sin थीटा को cos ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट. So this equation will become u is equal to u plus 8 square plus c cos of theta minus theta naught. अब इस थीटा और थीटा नॉट को हम यहाँ पर जो हमारे पास थीटा नॉट है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
and this can be made equal to 0 by rotating the baseline. So this expression will become mu over h square plus c cos of theta. So ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया. अब हम u इज इक्वल टू हमें पता है कि 1 over r लेते हैं. So we can write this u as 1 over r is equal to mu over h square. अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम 1 plus c over mu over h square cos of theta. So again we can write this as is h square over mu into r is equal to 1 plus c over mu, और ये h square हमारे पास ऊपर चला जाएगा. दिस विल बिकम cos theta. सो आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन हमारे पास ये बन जाता है h square over mu r is equal to 1 plus h square c divided by mu into cos theta. सो इस इक्वेशन को लेट्स से हम 2 कह लेते हैं. सो दिस इज द फॉर्म. हमारे पास ये जो फॉर्म है, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि h square over mu divided by r is equal to 1 plus h square c over mu cos of theta. तो ये हमारे पास फॉर्म होती है. अगर हम इसको कंपेयर करें सो ये दिस इज L over R is equal to 1 plus E cos of theta. सो दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक. ये हमारे पास पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, और ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे L इज इक्वल टू h स्क्वेयर ओवर म्यू है, जबकि हमारे पास E यहाँ पर जो आ रहा है वो h स्क्वेयर c ओवर म्यू है. सो दैट मीन कि हमने जो इक्वेशन प्रूफ करना था, इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना था दैट दिस ऑर्बिट डिस्क्राइब बाय द प्लैनेट अराउंड द सन दिस इज कॉनिक. सो ये हमारे पास कॉनिक की फॉर्म में आ रही है. ये हमने प्रूफ कर लिया. सो अब हम इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ एनर्जी को देखते हैं. जो हमारे पास इक्वेशन आई थी यू की, दिस इज म्यू ओवर एच स्क्वायर प्लस सी कॉस थीटा. इसको हम दोबारा लिख लेते हैं. This is u is equal to mu over h square plus c cos of theta. Let's say this is equation number A. और हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है, this is total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So हम कहते हैं कि E is equal to this is kinetic energy plus T and V. अब हम इन दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट्स से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है V, this is actually the function f of r dr. यहाँ पे हमारे पास जो f of r है, this is the central force per unit mass. So हम इसको लिख सकते हैं माइनस, और फोर्स है हमारे पास तो माइनस म्यू ओवर r स्क्वायर dr. क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा कि जो हमारे पास ये फोर्स है, दिस इज सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, सो दिस इज f ओवर m. तो हमारे पास जो f था gm इंटू m ओवर आर स्क्वेयर, सो डिवाइड बाई m. तो ये हमारे पास m से, ये इस mm से कट गया. सो दिस विल बिकम हमारे पास gm ओवर आर स्क्वेयर. सो इसको हम म्यू लिख लेते हैं, और दिस इज क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हम एक और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं विच इज म्यू ओवर आर स्क्वेयर. सो इसलिए हम एफ एफ आर को यहाँ पर माइनस म्यू ओवर आर स्क्वेयर लेते हैं. माइनस इसलिए लिखा है कि दिस सेंट्रल फोर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस साइन. So at the end this is equal to plus mu over r square dr. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो this will become minus mu over r. हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, this is T is equal to half mv square, और this could be equal to half. हमारे पास मास यहाँ पर 1 है, so this is half v square. Now this v is actually r dot or r. जो हमारे पास v vector है, this can be done as r dot into r unit vector plus r into theta dot, and this is transverse component. So अगर हम v dot square करें, v dot v है, so इसको हम अगर रेडियल कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, so this will become r dot square plus r square theta dot square. So that's why अब हम जो हमारे पास एनर्जी आएगी, this is equal to half v square and this is equal to half r dot square
plus r square theta dot square. So the total energy हमारे पास जो कि kinetic energy plus potential energy थी, so we can write this as half r dot square plus r square theta dot square plus और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो माइनस म्यू ओवर आर था, माइनस म्यू ओवर आर। और चूंकि हमारे पास r जो है वो 1 ओवर u है, सो इसका मतलब है r डॉट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और r है हमारे पास 1 ओवर u, सो दिस विल बिकम माइनस 1 ओवर u स्क्वेयर डी यू बाई डी टी। और अगर हम इसको इन टर्म ऑफ थीटा लिखें तो दिस इज माइनस 1 ओवर u स्क्वेयर डी यू बाई डी थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी टी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर u स्क्वेयर डी यू बाई डी थीटा, थीटा डॉट। सो आर डॉट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से माइनस 1 ओवर u स्क्वेयर डी यू बाई डी थीटा। नाउ थीटा डॉट हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, हमने लास्ट टाइम भूल गया था आर 1 ओवर u है, सो दिस कैन बी डन एज 1 ओवर u स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, और यहाँ से हम थीटा डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज एच यू स्क्वेयर। ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करें तो विल गेट दैट E is equal to 1 over 2 minus h du by d theta whole square plus 1 over u square h u square and the square minus mu into u, because that was 1 over r or 1 over r is equal to u. So we can write this as h square by 2, जो हम कॉमन ले लें, अगर अंदर हमारे पास बचेगा du by d theta whole square plus u square and then minus mu of u. So हमने ये पहले वैल्यू हमारे पास u हमने फाइंड की हुई है पहले, दिस इज u mu over h स्क्वायर प्लस c cos थीटा। सो इसको हम यहाँ पर दोबारा पुट करते हैं, दिस विल बिकम h स्क्वायर ओवर 2 माइनस c साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। u का जब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, अब हमारे पास u था म्यू ओवर एच स्क्वायर प्लस सी cos थीटा, और म्यू ओवर एच स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, सी cos थीटा का जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो दैट विल बी माइनस साइन थीटा प्लस u स्क्वायर है, और u स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास म्यू ओवर एच स्क्वायर प्लस सी cos थीटा है, तो उसका हम स्क्वायर ले लें, दिस इज म्यू ओवर एच स्क्वायर प्लस सी cos ऑफ थीटा एंड होल स्क्वायर माइनस म्यू एंड u की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करें, u ओवर एच स्क्वायर प्लस c cos ऑफ थीटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो हम विल गेट दैट, इसको सिंप्लीफाई करें विद द कैंसलेशंस एंड बाय टेकिंग द स्क्वायर्स, तो ये हमारे पास एच स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 2 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर ओवर 2 एच स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 2 माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 एच स्क्वायर। सो दैट मीन कि हमारे पास एनर्जी प्लस म्यू स्क्वायर ओवर 2h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 2 है। यहाँ से हम c स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाल लें, सो दिस विल बिकम म्यू स्क्वायर ओवर h की पावर 4 एंड 2e ओवर h स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर ओवर h पावर 4 प्लस 1 आ जाएगी। सो दैट मीन कि हम इसको लिख सकते हैं c को म्यू ओवर एच स्क्वायर बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 2e एच स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगी। सो हमारे पास u की वैल्यू थी u ओवर एच स्क्वायर प्लस c, और c की वैल्यू हमने ये निकाल ली। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज u इज इक्वल टू म्यू ओवर एच स्क्वायर प्लस c हमारी वैल्यू ये आ गई, दिस इज म्यू ओवर एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2e एच स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर cos ऑफ थीटा। u को 1 ओवर r चूँकि हमने पुट किया हुआ था, तो हम दोबारा से लिख लेते हैं 1 ओवर r म्यू ओवर एच स्क्वायर, और इसको हम कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2e एच स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर cos ऑफ थीटा। सो अब हमारे पास जो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक है वो है हमारे पास दैट इज L ओवर
r इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos ऑफ थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर r इज इक्वल टू 1 ओवर l 1 प्लस ई cos ऑफ थीटा। सो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है विच इज इक्वेशन सी, और ये इक्वेशन हमारे पास जो डी है, ये दोनों अगर हम कंपेयर करें, सो दिस 1 ओवर l 1 प्लस ई cos थीटा इज इक्वल टू म्यू ओवर h स्क्वायर, और ये वाली जो हमारे पास टर्म आएगी। सो वी कैन राइट दिस एज l इज इक्वल टू, जो हमारे पास इससे निकलेंगे विच इज l h स्क्वायर ओवर म्यू, और यहाँ से हमारे पास जो e आएगा वो आएगा 1 प्लस 2e h square over mu square. Thank you very much.